میں ساجد تارڑ آج واشنگٹن ڈی سی سے آپ سے مخاطب ہوں. آج مجھے کافی دن ہو گیا آپ سے بات کرتے ہوئے. جن ٹاپکس پہ آج بات کرنا چاہوں گا وہ ایک تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں اتنے دن کہاں رہا. تھینکس گیونگ کی وجہ سے یہاں پہ ویکیشن تھی, ہالیڈیز تھی. اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کے کچھ ٹاپکس پہ, پاکستان میں اس وقت جو کیا سیاسی صورتحال چل رہی ہے. اس کے بعد یہ بتانا چاہوں گا کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, اسرائیل اور سعودی عربیہ کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا کہ ٹرمپ صاحب یہاں سے جانے کے لیے اب تقریباً تیار ہونے والے ہیں اور ان کے پوری دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے. میں ان پہ بات کرنا چاہوں گا, OIC کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تھینکس گیونگ کیا ہے. تھینکس گیونگ ایک ایسا ہالیڈے ہے جو کہ صرف چند ممالک میں, امریکہ اور کینیڈا اور دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا. اور یہاں پہ تھینکس گیونگ, یہاں پہ جو ارلی کالونیز بنی تھیں وہ دو قسم کی کالونیز تھیں. ایک کالونی جو ہے جیمز ٹاؤن تھی ورجینیا میں, اور ایک تھی پلیمتھ میساچیوسٹ. جو پلیمتھ میساچیوسٹ, وہاں پہ زیادہ ریلیجس ریفیوجی یورپ سے آئے تھے, اور جب یہاں پہ آئے تھے تو انہیں کافی مشکلات کا سامنا تھا. وہاں پہ ان کو لوکل انڈینز نے کئی ٹریڈ سکھانے کی کوشش کی, انہیں گائیڈ کیا کہ آپ کارن کس طرح اگائیں گے. اور جب وہ پلیگ یہاں پہ وبا کا شکار ہو رہے تھے تو لوکل انڈینز نے ان کی ہیلپ کی. ان کے ریٹرن میں انہوں نے ایک بہت بڑا فیسٹیول کیا اور کھانا دیا, فیسٹیوٹی ہوئی. تو اس کو ان کا اظہار تشکر انہوں نے کیا انڈینز کا, اس کی وجہ سے اس کو تھینکس گیونگ کہا جاتا ہے. 1863 سے اس کو ساری اسٹیٹیں منا رہی ہیں, اور نومبر کی آخری تھرسڈے, آخری جمعرات کو تھینکس گیونگ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اب دراصل یہ ایک مارکیٹنگ کمپین بن چکی ہے کہ جس دن آخری تھرسڈے ہوتا ہے تھینکس گیونگ, اگلا فرائیڈے اس کو یہاں پہ ایز اے بلیک فرائیڈے یا جس طرح فرائیڈے دیا جاتا ہے شاپنگ کے لیے. اور آج کل یہاں پہ کیونکہ کووڈ بھی ہے اور ویسے بھی ایک ٹرینڈ بن چکا تھا آن لائن شاپنگ کا, بڑی بڑی کمپنیاں اپنی آن لائن سیلز کرتی ہیں. فرائیڈے کو بلیک فرائیڈے کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو سامان جو بچ جاتا ہے اس کو منڈے کو سیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کا کہا جاتا ہے بلیک منڈے. اور ان پہ اتنی زیادہ سیلز ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں زیادہ تر ان سیلز کے حق میں نہیں ہوں کہ میں جب بھی کسی سیل کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, یا تو مجھے سائز نہیں ملا یا اپنے مرضی کا رنگ نہیں ملا. یہ ایک صرف مارکیٹنگ گمک ہوتا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں ایک دو چیزیں سستی کر کے اپنی دوسری چیزیں بھی بیچنے کی کوشش کرتی ہیں, جو کہ بزنس ایجوکیشن میں بتایا جا سکتا ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. اب اس کے بعد میں پاکستان کی طرف جانا چاہوں گا. پاکستان پہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے, ایک تو الیکشن گلگت بلتستان کا ہوا, وہاں پہ PTI نے اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی. پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیاں جس طرح کے دوسری جگہوں پہ لوگ دھاندلی کا جو ہار جاتے ہیں وہ دھاندلی کا نظام لگاتے ہیں, وہاں پہ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دھاندلی کی شکایتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. اب میں اس پہ یہاں پہ جب لوکل سیاست کے بارے میں بات کروں گا تو یہاں پہ ایک چیز, اگلے دن میں نے ایک خبر پڑھی شبر زیدی کے حساب سے. شبر زیدی کراچی سے خان صاحب لے کر آئے, انہوں نے ان کو FBR کا ہیڈ بنایا. ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اگلے دن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوا. شبر زیدی صاحب سے کویسچن کیا گیا کسی انٹرویو میں کہ آپ جب FBR کے ہیڈ تھے تو آپ نے کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا. انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں جس کو ہاتھ ڈالتا تھا خان صاحب کال کر کے کہتے تھے اسے چھوڑ دو, یہ میرا فنانسر ہے. یہ خان صاحب نے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تردید نہیں کی, کنڈیم نہیں کیا. یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ خان صاحب جو کہ خود مدینہ کی ریاست کے فاؤنڈر ہیں پاکستان کو بنانے کے لیے پاکستان میں, وہ اس کو کنفرنٹ کیوں نہیں کر رہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خان صاحب کے پاس صرف ایک مینڈیٹ تھا, اکاؤنٹیبلٹی کا. اگر وہ اس کو ڈلیور نہ کر پائے تو ان کی لیگسی کوئی اتنی اچھی لیگسی نہیں ہوگی. اب میں لیگسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور فرانس میں اور انڈیا میں اور پاکستان میں جو ایک نیشنلسٹ موومنٹس چلی تھیں, لوگ اپنے تشخص کو قائم رکھنا چاہتے تھے. لوگ جس طرح پاکستان فرسٹ, امریکہ فرسٹ اور مودی صاحب ہندتوا اور جس طریقے سے برکسٹ ہوا, یہ ساری چیزیں لوگ اپنا تشخص اور اپنی ترقی کے خود ذمہ دار ہونا چاہتے تھے. تو وہ ان موومنٹس کا کیا ہوا؟ اس موومنٹ کو ایک دھچکا تو ٹرمپ صاحب کے ساتھ امریکہ میں لگا, اور دوسرا دھچکا جو ہے وہ خان صاحب, میرے خیال میں خان صاحب بھی نیشنلزم
को उतना उभार नहीं सके, वो अपना मैंडेट डिलीवर नहीं कर सके। कामयाब कौन हुआ? मोदी साहब। वो किस तरीके से हिंदुत्व का आइडिया दे कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा किया एक फ्लैग के नीचे, बराक ओबामा साहब अपनी बुक में उसका आइडिया दे चुके हैं। उन्होंने अपनी रीसेंट बुक जो मिलियंस के हिसाब से बिक रही है आजकल, उनकी किताब जो है इज़ अ बेस्ट बुक ऑफ द ईयर के टाइटल के आसपास पहुंच चुकी है। उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ अगर किया जाए तो ये इंडिया पूरा मुत्तहिद हो सकता है। मोदी साहब ने बिल्कुल इसी तरह किया। उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया और सारे हिंदुओं को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? पाकिस्तान को। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े होते हैं और हर जगह एक दूसरे के को नीचे करने की कोशिश के जोर में की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान में खान साहब एनर्जाइज नहीं कर पाए लोगों को, उनको एक झंडे के नीचे नहीं ला सके। नेशनलिज्म का आज भी फुकतान है। खान साहब के अपनी ज़ात की हद तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उनके आसपास दूसरी पार्टियों के सियासी यतीम इकट्ठे हैं जो कि मुसलसल खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी रिप्यूट को ख़राब कर रहे हैं। खान साहब खुद भी नवाज शरीफ के बाहर जाने से लेकर आज तक दूसरी चीज़ों में, कराची में जो जिस तरीके से सफ्तर साहब का एक वाक़या पेश आया, ये सारी चीज़ें मिस हैंडल हुई। लेकिन खान साहब ने जो लोग इन चीज़ के जिम्मेदारान थे उनको टेबल से नहीं उठाया जो कि उठाना चाहिए था। अब मैं इसी के हवाले से पाकिस्तान की एक और नाकामी को सामने रखना चाहूँगा। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का इजलास 47वां इजलास होने को है, नाइजीरिया में होगा। उसका एजेंडा आ चुका है, लेकिन उसमें कश्मीर का नाम नहीं है। हमारी वजारत खारजा मुख्तलिफ किस्म के बहाने बना रही है कि उसमें है, और लेकिन उसका मैंने खुद पढ़ने की कोशिश की है, उसका एजेंडा, उसमें कश्मीर का नाम नहीं है। मेरी समझ से बाहर है कि वहां पे हमारे वजीर खारजा ने क्या लेने जाना है। अगर कश्मीर नहीं है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को OIC से रिजाइन करना चाहिए। पिछली दफा OIC जिसकी इस वक्त जिसमें सऊदी अरेबिया का एक मेन रोल है, उन्होंने कश्मीर पे बात करने पे एतराज़ किया, उन्होंने मीटिंग बुलाने की मुखालफत की और पाकिस्तान ने उस पर भी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ना सिर्फ उस OIC के 47वें इजलास में नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को अगर कश्मीर में OIC की सपोर्ट हासिल नहीं है तो उनको रिजाइन करना चाहिए वहां से। अब मैं सऊदी अरेबिया के हवाले से भी ये भी बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया के हवाले से दो मेन खबरें रिसेंटली हुई हैं। एक तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया जाना और दूसरा G20 समिट के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब के हारने से जिन ममालिक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो एक इजराइल, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा इंडिया। मैंने जब इसको मजीद गौर से देखा तो MBS मोहम्मद बिन सलमान जो कि इस वक्त वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को सऊदी अरेबिया में बुला के क्या कहा है, उनकी क्या मुश्किलात हैं सामने। सबसे पहले तो उसकी मुश्किल ये है कि जो बाइडन जो कि खशोगी, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, उनके मर्डर पे बड़े खुल के अपनी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका में उनका केस चल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान साहब को ये खदशा है कि शायद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए यहाँ से, जो कि सऊदी अरेबिया के लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत बड़ा धचका होगा। उन्होंने 3 चीज़ें उनके सामने रखी हैं और उनसे मदद की अपील की। एक तो इस केस के हवाले से, क्योंकि इजराइल का असर रसूख अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, इस पर सपोर्ट उन्होंने मांगी। दूसरा ईरान के खिलाफ, क्योंकि जो बाइडन साहब ने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है वो ईरान के मुआहदे को फॉर्म करने वाला, लिखने वाला वही इंसान था जो अभी नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने जा रहा है। तो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ा धचका, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका के वही रिलेशनशिप होंगे जो बराक ओबामा दौर में हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने कैश पैसे दिए गए ईरान को, तो सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि अमेरिका के रिलेशनशिप ईरान के साथ नॉर्मल हो जाएंगे। उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से उसके बारे में बात की। और तीसरा, टर्की का दुनिया में बढ़ता हुआ, खासकर मुसलमान मुल्कों में
असर व सूख बढ़ता हुआ सऊदी अरेबिया के लिए दूसरी खतरे की घंटी है। और मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से उसके खिलाफ भी मदद की अपील की है। अब मैं आगे चलना चाहूंगा, खासकर सऊदी अरेबिया के हवाले से जब मैं बात कर रहा हूं तो G20 कंट्रीज की जो समिट हो रही है वो इस वक्त G20 कंट्री की प्रेसिडेंटशिप जो है वो सऊदी अरेबिया के पास है। उन्होंने उसके हवाले से अगले दिन, आज से महीना 2 महीने पहले वहां पे एक यादगारी नोट निकाला है। उसमें सबसे बड़ा जो मुझे एक शॉक हुआ देखकर, उस पर जो दुनिया का नक्शा बनाया गया है, पाकिस्तान का बिलखसूस और इंडिया का नक्शा, उसमें ना मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान को एक सेपरेट हिस्सा करार दिया गया है। पाकिस्तान को उस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के करप्ट सियासतदान अपनी गेम में मसरूफ हैं, उन्हें इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन इंडिया ने उस पर एतराज किया है और उन्होंने सऊदी अरेबिया को थ्रेट किया है कि आपने अगर इस चीज़ को चेंज ना किया तो जो मोदी साहब हैं G20 की समिट में वो शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। मेरे लिए ये काबिल फिक्र था, ये मेरे लिए एक ऐसा सख्त पॉइंट था कि पाकिस्तान को उस पर एतराज क्यों नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सो रही है कि आपका गिलगित बिल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया, आज़ाद कश्मीर को काट दिया गया है, तो पीछे पाकिस्तान बचा क्या है। मुझे यहां तक ये सुनने में आया कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है दे आर ओके विद इट। उनके कान पे जून तक नहीं रेंगी। मेरे लिए लम्हा फिक्रिया था ये इस तरह पाकिस्तान के साथ क्यों किया जा रहा है। इंडिया मकबूजा कश्मीर और लद्दाख के सिर्फ उस नक्शे में ना होने पे इतना एतराज उन्होंने किया, मोदी साहब ने थ्रेट कर दिया और पाकिस्तान ने कोई सवाल नहीं उठाया। ये मेरे लिए एक बड़ी बड़ी काबिल फिक्र एक बात थी। अगली उसके बाद मैं जो मजीद मिडल ईस्ट पे बात करना चाहूँगा। आज से 2 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है इजराइल के हवाले से कि दुबई में पाकिस्तानियों के विजिट वीज़ाज बंद कर दिए गए, वहाँ पे वर्क वीज़ाज बंद कर दिए गए और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर की एक बहुत बड़ी इलामत है ये। और पाकिस्तान उस पर बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी चुप करके बैठी है और लोगों को इधर से उधर की बातें बता रहे हैं, लेकिन हकीकत बात ये नहीं बता रहे कि दुबई और मिडल ईस्ट के जितने दूसरे अरब ममालिक हैं वो अपने मुफाद की बेस पे अपने फैसले करते हैं और दे आर लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम। आजकल दुबई में भी यही हो रहा है। जो वैक्यूम क्रिएट होगा वहां पे जॉब्स का, उसको इंडिया फिल करेगा और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस पे खामोश है। मेरे लिए ये एक और दूसरी बहुत ही सख्त खबर थी कि UAE ने पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा स्टैंड लिया और पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और करप्ट सियासतदानों को बिल्कुल ख्याल इस चीज़ का नहीं है कि सारे पाकिस्तानी वापस जाएंगे सऊदी अरेबिया से, मिडल ईस्ट से, और वहां पे इकानमी की हालत क्या होगी। कोविड के बाद ये दूसरा झटका पाकिस्तान की इकानमी बर्दाश्त कर पाएगी, पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त कर पाएगी। ना खान साहब इस पे सोच रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो वैसे सियासी आदमी हैं, फॉरेन पॉलिसी के साथ उनका कोई इतना गहरा लगाव नहीं है, लेकिन खान साहब को चाहिए कि इस पे कुछ सोचें कि मिडल ईस्ट क्या कर रहा है पाकिस्तानियों के साथ और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। अब उसके बाद इन दिनों में जो एक और दूसरी बात हुई, मैं इस पर थोड़ा सा टच करना चाहूँगा, आपको एजुकेट करना चाहूँगा पेरिस अकॉर्ड के बारे में। जो बाइडन जब टेक ओवर करेंगे और उनकी स्टेटमेंट थी कि वो पहले दिन ही पेरिस अकॉर्ड को ज्वाइन कर लेंगे। पेरिस अकॉर्ड क्या है? ये दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट के हवाले से या दुनिया में पोल्यूशन के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका दुनिया के पोल्यूशन में सिर्फ 13% पोल्यूशन क्रिएट करता है। दुनिया के 3 सबसे बड़े पोल्यूटर कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना और रशिया। चाइना जो कि एक बहुत बड़ा पोल्यूटर है इस कार्बन प्रिंट के हवाले से, उसकी शमूलियत इसमें 2030 में होगी। लेकिन जो बाइडन साहब पेरिस अकॉर्ड को आज ही ज्वाइन करना चाहते हैं और उसकी सजा किसको मिलेगी? अमेरिकन को मिलेगी। क्या होगा? एक तो वो यहां पे फ्रैकिंग बंद करेंगे। फ्रैकिंग क्या होती है? माइनिंग।
उसके बाद यहाँ से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाली जा रही हैं, ऑयल इंडिपेंडेंट जो हो चुका था अमेरिका, उसको दोबारा यहाँ से ऑयल को बंद करके दोबारा डिपेंडेंट बनाया जाएगा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज पे। पेट्रोल फिर महंगा होगा, अमेरिकन इकॉनमी सफ़र करेगी। पेरिस अकॉर्ड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगले आने वाले चंद दिनों में होगा यहाँ पे। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ और क्या मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त कोविड के हवाले से, मुझे अगले दिन बताया, मैंने बीबीसी ने भी इस पर प्रोग्राम किया है कि इस वक्त कराची, रावलपिंडी, हैदराबाद, इस वक्त वहाँ के हॉस्पिटल्स मरीजों से भर जा चुके हैं। वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है। यहाँ तक ये भी खबरें आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स नए मरीजों को नहीं ले रहा। इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है, इसके बारे में अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली। मैं एक बात जो और मज़ीद इसमें करना चाहूँगा, मेरे ख्याल में कुछ दोस्त जो है उनको इतराज़ होगा इस बात पे कि इस सेगमेंट पे और पिछले सेगमेंट के दरमियान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। मौलाना खादम रिजवी साहब इंतकाल कर गए। मौलाना खादम रिजवी साहब, मैं उनकी काफ़ी चीज़ों से, उनकी काफ़ी बातों से काफ़ी इम्प्रेस था उनसे। उनका इकबालियत पे अबूर, उनका इल्लामा इकबाल से प्यार, और सबसे बड़ी बात आशिक़ रसूल होना। मैं खुद मिडिल सेंट्रल पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मैं खुद अपने आप को आशिक़ रसूल समझता हूँ। जितना उनका हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और जितना प्यार उनको था, मेरे ख्याल में आज तक जब भी वो नामूस रसालत को लेकर इस्लामाबाद निकले हैं, वाहिद उन्होंने, मैं क्रेडिट दूंगा 2017 से लेकर आज तक जितना उन्होंने नामूस रसालत पे काम किया, मेरे ख्याल में इन रिसेंट हिस्ट्री में किसी ने किया होगा। पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा लॉस, और मैं उस पर जितना भी अफसोस करूँ वो कम होगा। कई लिबरल लोग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो हमारे पैगंबर की नामूस और बिलखसूस आजकल फ्रांस के एम्बेसडर और फ्रांस में जिस तरीके से खाके बनाए फ्रांस में, और वहाँ पे बिलखसूस वहाँ पे बिल बोर्ड लगा के शाम को पुलिस को इकट्ठा करके जिस तरीके से वहाँ के खाकों का ट्रेलर चलाए जाते हैं, जितनी भी मुसम्मत की जाए वो कम है। तो खादम रिजवी साहब, मैं आप हमेशा मेरे दिल में जगह रखेंगे। मैं आपकी तकारीर को सुनता था, और जो आपने लब्बैक तहरीक चलाई थी, इट वॉज वेरी डियर टू माई हार्ट। डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 जनवरी को व्हाइट हाउस छोड़ के अपनी प्राइवेट लाइफ में चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा? अमेरिका में ये होगा कि इस वक्त ओबामा जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट ओबामा चलाएंगे। ओबामा के जो उनके अपने लोग उनके साथ थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो वापस आ चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में। ओबामा टाइम की फॉरेन पॉलिसी वापस आएगी, और वही इकोनॉमिक पॉलिसीज अमेरिका की होंगी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक ओबामा पीरियड में हुए। चाइना को खुली छुट्टी दी गई, आंखें बंद कर ली गई, और साउथ चाइना सी पे चाइना ने कब्जा किया। रशिया ने फ़ायदा उठाया। रशिया ने जाके शाम में, सीरिया में नेवल बेस बनाई, और उन्होंने यूक्रेन और क्रीमिया में चले गए। इसी तरह ओबामा फिर अब फॉरेन पॉलिसी से आंखें बंद करेंगे। उसका एक स्टेप तो एक कदम तो उठा लिया गया है। ओबामा की जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी टेक ओवर नहीं किया, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट को कंडेम कर दिया है चाइना के कहने पे। चाइना कहता है कि अमेरिका फर्स्ट जो है ये स्लोगन हमें पसंद नहीं है, तो उन्होंने उस पे अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम इस अमेरिका फर्स्ट की आइडियोलॉजी से विड्रा करेंगे। अब दुनिया को क्या होगा? इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान यह हुआ है कि अब अमेरिका चाइना से दोबारा खेलने जाएगा, और उस पे जो इंडिया और चाइना की आपस में चपरस चल रही है, उसमें इंडिया को नुकसान होगा। दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरेबिया को। मोहम्मद बिन सुलेमान, जिनकी पूरी दुकानदारी डोनाल्ड ट्रंप और कुशनर पे चल रही थी, उनको शाक। इजराइल जो मिडल ईस्ट में अपने एक्सपेंशन कर रहा था, ग्रेटर इजराइल के प्लान को धचका लगेगा। जो ममालिक मिडल ईस्ट में इजराइल को तस्लीम कर चुके थे, उनके लिए एक शाक है। और तीसरा, अमेरिकन इकॉनमी
जो कि सांस ले रही थी कोविड की वजह से, उसको बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अमेरिका के लिए बिजनेस प्लान है कि 5 स्टेट्स, वहां पे टैक्सेशन 60 से 68% होगी, जिनमें 2 स्टेटें न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया भी है। आजकल यहां पे गेन टैक्स 23% था, वो 43% कर दिया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस इलेक्शन में एक सबसे बड़ा शॉकिंग स्टेप जो लिया गया है, ऑरेगन स्टेट में क्रैक कोकेन को लीगलाइज कर दिया गया है। अगर आपके पास क्रैक कोकेन पकड़ी जाए तो आपको सिर्फ $75 फाइन किया जाएगा। आज से 5-6 साल पहले इसी तरह से मरवाना लीगलाइज हुआ था कि आपको सिर्फ $50 फाइन देना पड़ता था। अब दोबारा इसी तरह ड्रग्स को फरोग दिया जाएगा, हिपीइज्म को फरोग दिया जाएगा, बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, और डिफेंडिंग पुलिस, सबसे बड़ा जो बैक स्टैबिंग है वो डिफेंडिंग पुलिस है। न्यूयॉर्क में $1 बिलियन की डिफेंडिंग पुलिस कर दी जा चुकी है। वहां पे क्राइम रेट 166% और मर्डर रेट 51% हो रहा है। पोर्टलैंड में अंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ रहे हैं कि पुलिस को खत्म किया जाए। वहां पे उनसे वादा किया गया था कि 30% पुलिस को खत्म करके वो सारे पैसे आपको दिए जाएंगे, आप अपनी सर्विसेज पे या अपने प्रोग्राम्स पे उनको खर्च कीजिएगा। अब आजकल देखें जो स्टेप होने वाला है, जॉर्जिया में 2 सेनेटर्स की अभी इलेक्शन होने वाले बाकी हैं। अब देखते हैं कि वो इलेक्शन 2 सेनेटर्स के कौन जीतता है। अगर तो वो डेमोक्रेट जीत जाते हैं तो फिर सेनेट भी जो डेमोक्रेट में हाथ में चली जाएगी। अगले दिन किसी ने उसका सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की कि प्रेसिडेंट कैमला हैरिस, स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सेनेट चलाएंगे चक शूमर, और उसके बाद अमेरिका विल बी ऑलमोस्ट कॉल्ड अ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका इन कमिंग डेज। अब देखें कि किस हद तक हम कहां तक पहुंचते हैं। मैं अगले सेगमेंट तक आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।